भारत माता की वंदे वंदे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। इंसान नहीं है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, ईमान नहीं है, मंदिर भी है, मस्जिद ईमान नहीं है। घर घर यहाँ छोट है, दिल सबसे जुदा है। घर घर यहाँ छोट है, दिल सबसे जुदा है। दौलत जिसे मिल जाए वहीं मौज खुदा है। इंसान को इंसान से इंसान को इंसान से पहचान नहीं है। मंदिर भी है, मस्जिद भी है, ईमान नहीं है। मंदिर भी है, मस्जिद भी है, ईमान नहीं है। तुम चाहे तो हर मौज पर तूफान बना दो, तुम चाहे तो हर मौज वरना मैं समझूंगा, वरना मैं समझूंगा तुम भगवान नहीं हो। मंदिर भी है, मस्जिद भी है, ईमान नहीं। इस लॉकडाउन के पूरे दौर में भी हमारे विद्यालय में इस कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस लॉकडाउन की और हमारे देश में जो ये कोरोना महामारी है, ये एक बुरा स्वप्न है। आज के दिन हम इस बात का प्रण ले, ईश्वर से प्रार्थना करें कि शायद हमारे लिए ये गुजरता हुआ साल बड़ी ही जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि छूट गई है साथ, छूट गई है साथ मेरे। तन्हाई में याद आती है, तन्हाई बीते साल की, पल पल मुझको मार रही है रुसवाई। तो दिखाओ चल के ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे जो दिखाओ चल के ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज़ न डगमगाए।
डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के। अपने विद्यालय के प्रिंसिपल मैम को आमंत्रित करता हूँ एक जोरदार तालियों के बीच में उनके Independence Day, respected our teachers, respected our directors and our scholars. But this is joyous day. For this reason, we celebrate 15 August occasion. Today we celebrate the 74th Independence Day. I can read my greetings and good wishes to all Indians living in this beautiful country and pray for their peace, progress and prosperity. This freedom owes itself to struggles of Netaji Subhash Chandra Bose, Babu Mahatma Gandhi ji. They stood like rocks for the rights of people. They faced many hardships, yet he withstood. This freedom owes itself to our great leader, Pandit Jawaharlal Nehru. He never compromised for the right of people, and this independence owes itself not to the sacrifice of our other leaders, as Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Bhagat Singh, Khudiyam Bose, and Chandrasekhar Raja. Our rights were compromised. We felt suffocated. Our social, political, and economical conditions were very bad. And in the age, it was not an honor for India to live under slavery of foreign force. At least we gained freedom in 15th August 2047. We all are gathered here today not only to chant slogans, not formal to maintain our land needs us more than anything. We have to fulfill the promise that we have been doing with other land. Thanks to all. Jai Hind, Jai Bharat. Hi, Rajesh Kumar Sir. जमी से ऊंचा चंद सूरज है, उससे ऊंचा आसमान हो। जमी से ऊंचा चंद सूरज है, उससे ऊंचा आसमान हो। सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान हो। सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान हो। यही हुए थे वीर भगत सिंह जिनकी कथा महान हो। यही हुए थे वीर भगत सिंह जिनकी कथा महान हो। हंसते हंसते फांसी चढ़ गए राम हो। जंग से ऊंचा जंग सूरज है, उससे ऊंचा आसमान हो। सबसे सितान हो, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान हो। जय हिंद, जय भारत। अपने विद्यालय के ब्लॉक बी के प्रिंसिपल सर को आमंत्रित करना चाहूंगा उनके 2 शब्दों के लिए। तालियों के बीच में मैं उनको आमंत्रित करता हूं। Honorable Chief Guest, Director Sir, Principal Ma'am, and all teachers. Today we are gathered here to celebrate our 74th Independence Day. As we all know, years ago, Mughals have ruled over our country for 500 years, and after that, British came and they ruled over us for 200 years. After sacrificing our lives, lakhs and lakhs freedom fighters sacrificed their lives to get independence, and after that we got it finally on 15th August 1947. Nowadays,
we used to say every year. This has become a simple routine program, but we don't think how to retain this freedom. Whatever is going these days in our country, that is very penny and it creates a lot of thinking for intellectuals and those sincere people who are qualified. We have to think for our country what to do to retain our freedom, to retain our freedom. As these days, casteism is there, corruption is there, communalism is there. So when we will finally get freedom of these problems, it is true. But we are not, still we are living like a slave under communism, casteism, corruption, nepotism, etc., etc., etc. So we have to think a whole thing. And as we know what is going in our borders, two front enemies, two front borders are there. One side Pakistan, second side China. What is the situation? You are well aware of that. Being a patriotic citizen, I always think about that. Once upon a time, I was very interested to join Indian Army, but unfortunately, that was not possible. But we have to train our guys, our kids. We have to teach them patriotic lessons, patriotic stories from our history, and we are part of our country. These things must be in practice. Celebrating this function on the feast day is not enough, as I think. So we all have to think over this. We all have to send our boys, our sons in defense forces. Of course, defense is also there, engineering, medical is there. That is also a part of, we are also as a teacher, we are serving countries. But that what is very necessary. And pandemic that is known as coronavirus, we are also facing. All systems, all economic scenario has become changed. This is also changing. We are not suffering, everyone is suffering. People are losing their jobs. So what to do for that and how to maintain, how to survive. In our school, first time in my life, first time I am looking this type of celebration where no student is present. This is also panic. We have to work for overcoming the state government and local authorities, local bodies. Unfortunately, we see that people, they are from our side. We people are not following that rules. So we have to use mask, we have to use sanitizer every time, we have to make social distance, and so many states we have been guided and we have come to us from our government. We have to maintain that. We also ignore these things. I have seen so many places, not to mention in school also. So first we have to be well disciplined, then we have to train others. So many things are there to discuss. So I think this time is not for that. So as today's function is concentrated on Independence Day only. So I think this is enough for right now. And thank you very much for you all people listening my speech here. Okay, Jai Hind. And suggestional video and your words. Now I would like to call our prefect Rajiv Sher for his beautiful song. आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, ओ मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मीठे पानी में
के तुम आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। सदस्यों, टापू पर जैसे सूर्योदय हुआ, पश्चिम से कराची से जहाज आ रहा था वहां झंडा फहराने के लिए, और वहां झंडा फहराने के साथ इलीगल इंक्रोचमेंट हो जाता फॉरएवर। लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदा थे, और उन्हीं की सूझबूझ का परिणाम है कि भारत के पश्चिम स्थित टापुओं पर झंडा फहरा दिया गया था, और कराची से आने वाले जहाज जो वहां झंडा फहराने के लिए आ रहे थे, यहाँ झंडा लहराता हुआ देखकर वहीं से लौट गए। दिस एंड पीरियड में कुछ और सी बातें हुई जो सार्वजनिक रूप से कहने की चीज नहीं है, कि किसके दिमाग के ऊपर, किसके दिमाग से मार खा गई थी, इसको स्टेट्समैन लोग एलाबोरेट किया। यह बात सार्वजनिक रूप से आज कहने की चीज नहीं है। आजादी की लड़ाई में जिनका जिनका सहयोग रहा, कुछ लोगों का नाम तो बहुत लोग जानते हैं, और कुछ गुमनाम भी हैं जिनको कोई नहीं जानता है, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। 15 अगस्त 1947 के पहले 1857 में हम लोग का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, वह शुरुआती दौर। इसके पहले भी संथाल परिणाम में कुछ संघर्ष हुआ, वह भी स्वतंत्रता आंदोलन का ही सूत्रपात माना जाए। 1857 में 21 मई को बहुत कुछ हो गया रहा था, लेकिन बहुत से कारण ऐसे हैं जो नहीं हो सका। उसमें उन्होंने बहुत सी बातों को लिखा। वह किताब छपने के पहले ही बैन हो गए, लेकिन बाद में वो पब्लिकेशन जब हुआ तो उससे बहुत सी बातें बोली। हम लोग के संघर्ष की बहुत सी कहानियां बहुत कारणवश दबा दी गई, लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत सी जगह लोग समझे जाने। तो इस संघर्ष के पीछे बहुत लंबी कहानी है, बहुत सी बातें हैं, और उस संघर्ष में, स्वतंत्रता आंदोलन में हम लोग के बेटियां के भी योगदान रहा। और यह बड़ी खुशी की चीज है कि यहां से कुछ ही फीट या गज की दूरी पर 15 अगस्त 1947 को जैसे ही देश आजाद हुआ, वैसे ही किया के प्रांगण में जो हेडमास्टर थे, वे अंग्रेज नहीं थे, तो जर्मन थे, और उन्होंने 2 अशोक का पेड़ लगवाया। 15 अगस्त 1947 के याद में वो दोनों अशोक का पेड़ है वहां। मुझे व्यक्तिगत रूप से उसके बारे में जानकारी है, किसने लगवाया और किसने लगाया। बसवरिया में माली थी नरसिंह जी, नरसिंह पटेल आज के भाषा में कहा जाएगा, उन्होंने ही लगाया। हम जब भी जाते हैं उन पेड़ों को देखते हैं। तो बहुत सी बातें हैं आज के दिन पर कहने के लिए, लेकिन स्थिति को देखते हुए हम कई शब्दों के साथ विराम देते हैं, और आप सबों के शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर विचार हमें सुनने को मिला, और ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि बेटियां में के द्वारा भी इस स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे वीरों का बहुत ज्यादा योगदान है। आज चारों तरफ निराशा, उदासी और एक कोरोना महामारी जो हमारे देश में फैली हुई है, उसके कारण सबके अंदर एक निराशा का भाव जगा हुआ है। लाखों लोगों की रोजगार जो है वो खतरे में है, नौकरियां जा रही हैं, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। ऐसे में हमें ये कहना है
कि बहुत हो चुका, अब हमें इंसाफ मिलना चाहिए। खदेड़ धुंध नभ साफ मिलना चाहिए। भ्रष्ट तंत्र भ्रष्टाचार और जो भ्रष्ट है इनके विचार, हर एक जन को अब इसके खिलाफ मिलना चाहिए। हमें प्यारा खूबसूरत हिंदुस्तान मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के बीच में मैं अपने विद्यालय के डायरेक्टर सर को आमंत्रित करना चाहूंगा उनके 2 शब्दों को सुनने के लिए। जोरदार तालियां हम अपने शिक्षकों से चाहेंगे। 74वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर उपस्थित हमारे सभी शिक्षक वृंद, विद्यालय कमेटी के हमारे आदरणीय अतिथि महोदय, सदस्यगण, सभी गैर शैक्षणिक कर्मचारी और घर के ही, विद्यालय के तो नहीं, घर के ही कुछ हमारे बालक छात्र छात्राएं, आप सबों का आज के इस पावन अवसर पे यहाँ हार्दिक अभिनंदन है। ये दुर्भाग्य भी है और एक इतिहास भी होगा आज का दिन कि पहली बार, शायद यहाँ जो भी बैठे हैं शायद उनके जीवन में ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि जहाँ बच्चों के अनुपस्थिति में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हो रहा है, स्टूडेंट लेस। मनुष्य परिस्थितियों का दास है और परिस्थितियों के अनुसार हमें चलना होता है। 2 दिन पहले कार्यक्रम को करने के लिए हमें दोनों ब्रांच के प्राचार्यों के साथ बैठक में मैंने अंततः ये कहा था कि कम से कम 10 बच्चों को हम लोग बुला लें नेशनल एंथम के समय। लेकिन कल फिर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू ये माननीय जिला पदाधिकारी का एक मैसेज आया कि किसी भी शर्त में विद्यालय परिसर में बच्चों को नहीं बुलाना है। बाध्य होकर उसे भी मुझे कैंसिल करना पड़ा। और हम लोगों में जोश उत्साह की कमी कहीं से नहीं है। पूर्व की भांति आप देख रहे हैं यहाँ जो भी तैयारियां की गई है, बस एक ही चीज की कमी खल रही है कि हमारे बच्चे नहीं हैं। बच्चे घर पे हैं, लेकिन अभी का जो परिस्थिति है, जो आज की परिस्थिति है, उस परिस्थिति के हिसाब से, ताकि वो बच्चे भी अपने आप को बोर फील न करें, उनमें उदासी न हो, उनमें भी कुछ, उनके अंदर भी छुपी हुई प्रतिभा है जो अपने विद्यालय में दिखाया करते थे, वे उत्सुक होंगे। उनके इन बातों को ध्यान रखते हुए मैंने डिजिटली पहले से ही व्यवस्था कर देगी। उनके जो वर्ग शिक्षक हैं, जो उनका ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वे आज उनके साथ जुड़े हैं ताकि हमारे बच्चे अपने अंदर की प्रतिभा को इस आजादी के अवसर पर दिखा सके। जो हमारे शिक्षकों के द्वारा बच्चों को सुना गया है, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा है कि आज पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। उसी का ये नतीजा है कि आज यहाँ सुना भी दिख रहा है, जो कि पहले बड़ा पूरा दिखा करता था। सब कुछ है, बच्चे नहीं हैं, और बच्चे को भी शिक्षकों से मुलाकात नहीं हो रही है। वही बच्चे भी घर पे मन महसूस कर रह जाते होंगे, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। ये परिस्थिति बस ऐसा हो रहा है। ये एक महामारी है, ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बुलाया गया है, और ये कब तक चलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आए दिन विभिन्न माध्यमों से हम लोग देख रहे हैं कि 2 महीने में समाप्त हो जाएगा, इसके लिए ये उपचार करना है। सभी लोग अपने अपने स्तर से सावधानी ले रहे हैं, करना भी होगा, लेकिन अंततः इसका एकमात्र ही उपाय है कि जो भी सरकार के तरफ से उचित परामर्श दिए जाते हैं, गए हैं, उसको हमें फॉलो करना होगा जब तक कि ये बीमारी पूर्ण रूप से इस समाज से समाप्त न हो जाए। पूरे देश पर आर्थिक मंदी छाई हुई है।
इस कोरोना महामारी के दौरान, फिर भी जितना हो पा रहा है अपने स्तर से, जैसे अभी सबसे बड़ी समस्या है, जैसे हमारे शिक्षक महोदय ने कहा कि बेरोजगारी की, बहुत सारे प्राइवेट फॉर्म में जो नौकरियां बाहर कर रहे थे, बहुतों की नौकरियां चली गई, उनके सामने बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम भी प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, हमारे जैसे और बहुत साथी चला रहे हैं। आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि ये संस्थाएं भी बहुत तरह से जूझ रहे हैं। ये हमारा नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि इस परिस्थिति में हम अपने साथ साथ दूसरों के विषय में भी सोचें, क्योंकि ये महामारी सबके लिए है। इसलिए धैर्य को बनाए रखना है, अपने धैर्य को खोना नहीं है, इस विश्वास के साथ कि हमारे वो पुराने दिन फिर वापस आएंगे। ईश्वर है तो हमें उन पे विश्वास करना होगा और एक समय सीमा के बाद हम फिर से अपने पुराने घर लौट आएंगे, हमारे घर फिर से खुशियां लौट आएंगी, फिर से वस्तु स्थिति वही हो जाएगी, हमारे बच्चे हमारे साथ होंगे। आज बच्चे हमारे अपने माता पिता के पास हैं, उनके संरक्षण में है। और सिविक्स में बताया गया है कि परिवार प्रथम पाठशाला है, जिसका बच्चे आज आनंद उठा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ उपस्थित सभी हमारे शिक्षकों को, सभी गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को, सबको पुनः मैं पूरे विद्यालय परिवार के तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।